So this is my new YouTube channel, Neet Pate, and I have created this channel so that I may help NEET aspirants with biology topics. Okay, so here we'll be brushing up the important topics that are required for the exam and brief introduction about myself. My name is Sarthak Kumar and I'm a BSc Biomedical Science student from DU. So today we'll be discussing about biomolecules. Okay, so this is an intro lecture, so let's start. So as you know that all the carbon compounds that we get from living tissues can be called as biomolecules. So we classify biomolecules into two categories, that is micromolecules and macromolecules. So those molecules which have molecular weight around 800 Dalton or less than that, that is कितना less 1000 Dalton से less and 800 के around, उसको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल. और जो मॉलिक्यूलर वेट जिसका 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है we refer it as macromolecule or biomacromolecule. Okay, so biomolecules are further divided into two categories, micromolecules and macromolecules. Okay, so this micromolecule is also referred as acid soluble fraction, and macromolecule are also known as acid insoluble fraction. So in later on we'll be discussing about these two fractions also in detail. So acid soluble fraction are further divided into amino acids, simple sugars and nucleotides. So this is a process कि हम कैसे हमारा जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है वो कैसे बनाते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी टेक अ लिविंग टिश्यू. ओके, कोई भी एक हम लिविंग टिश्यू को ले लेंगे एंड उसमें हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3COOH को हम ऐड करेंगे. ठीक है, सो वील यूज देन मोटर एंड पेसिल, जिससे हम एक थिक स्लरी सा बना लेंगे. ठीक है, उसको क्रश कर करके हम एक थिक सी स्लरी बना लेंगे. सो दिस स्लरी वील पास इट थ्रू अ चीज क्लॉथ और एनी क्लीन कॉटन क्लॉथ, जिससे हमें दो फ्रैक्शंस मिलेंगे. ओके, सो एक फ्रैक्शन होगा जो उस क्लॉथ को एस्केप आउट करेगा और एक होगा जो उसी में रह जाएगा. सो जो रह जाएगा दैट इज नोन एज रेटिनेट, एंड जो आ जाएगा जो उस क्लॉथ को एस्केप आउट कर देगा दैट इज रेफर्ड एज व्हाट, इट इज रेफर्ड एज फिल्टरेट. Next we have the acid soluble pool contains chemical with small molecular mass of around 18 to 800 Dalton. Okay, so इसको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल. और जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है वो एक रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को. सो व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन? वो कॉम्पोजिशन जिसमें हम ऑर्गेनेलीज को इंक्लूड नहीं करते हैं. Excluding organelles, whatever is left, that is referred as cytoplasmic composition, and वो किसके अंडर आता है? That comes under acid soluble fraction. So acid soluble fraction जो होता है उसके अंदर हमारे अमीनो एसिड्स आते हैं, शुगर आता है, न्यूक्लियोटाइड आता है, etc. Next we'll see we'll see inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. They are also present in this only. Now the grinding living tissue, this is through flow chart. We take CCl3COOH molded vessel, then we make a slurry out of it, and then we get two fractions. One is acid soluble and another is acid insoluble. So as you know, biomolecules are further divided into two. We discussed earlier also, micromolecules and macromolecules. Okay, next we have the acid soluble pool. सो एसिड सॉल्युबल पूल जो होता है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में जो लाई करेगा उसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल. जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, हमारे सिंपल शुगर होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है. बेसिक जो यूनिट्स हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के
वो हमारे कहीं ना कहीं कहाँ आ रहे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा जिसका वेट है उसको हम रेफर करते हैं। सो इसके अंडर क्या क्या आएगा, पॉलीसैकेराइड्स आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे और हमारे लिपिड्स आ जाएंगे। फर्दर द फ्रैक्शन विच इज रेटिनेट, जो हमारे चीज क्लोथ में था, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज एसिड इंसॉल्युबल पूल। ओके, सो 1000 डाल्टन से ज़्यादा जिसका वेट है वो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लासेस ऑफ कंपाउंड with exceptions. Now what is the exception here? That lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. But lipid is not strictly a macromolecule. But वो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम ग्राइंड करते हैं तो जो लिपिड्स का जो आउटर वॉल होता है, जो वेसिकल्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जो वेसिकल्स होते हैं वो एस्केप आउट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे लाई इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। बट दीज मॉलिक्यूलर वेट, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता है, तो इसीलिए वो किस में आना चाहिए, माइक्रोमोलिक्यूल में। बट इट कम्स अंडर मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज इट लाई इन रेटिनेट पोर्शन। एंड व्हाई रेटिनेट पोर्शन में आता है? बिकॉज वेसिकल्स की वजह से जो ये एस्केपिंग टेंडेंसी है इसकी, वो डिक्रीज कर जाती है। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो इसमें है लिपिड्स में, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर मैक्रोमोलिक्यूल। बट अकॉर्डिंग टू द वेट क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, the two fractions together represent the entire chemical composition of living tissue. So यही दोनों फ्रैक्शन के अराउंड आपको सारे लिविंग टिश्यूज के केमिकल कॉम्पोजिशन मिल जाएंगे। Now this was organic analysis. Now we'll see the inorganic analysis कि हम लिविंग टिश्यू की inorganic analysis कैसे करेंगे। So inorganic elements and compounds are also present in the living organism, which can be known with the help of a technique, and that technique is called as ASH analysis. क्या है ये? इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ASH analysis. Okay, so yeah, so this analysis technique is very simple. This is not particularly from NEET point of view, but yeah, it is informative. That is why I am briefing here. Okay, सो कैसे इसको करना है, हम इसको एनालिसिस करेंगे। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सबको पता है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम इस टेक्निक से पता कर सकते हैं, राइट। सो वील टेक अ लिविंग टिश्यू, से लिवर और एनी लीफ। सो व्हेनेवर वी टेक अ टिश्यू आउट, सो दैट इज नोन एज वेट वेट। एंड जब हम उसको बर्न कर देते हैं या उसमें से हम वाटर इवेपोरेट कर देते हैं, तो जो वेट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेफर्ड एज ड्राई वेट। सो इन स्टेप 2 we'll evaporate all the water. In step 3 the remaining material after evaporation जो है वो है हमारा ड्राई वेट। Then this dry weight will finally be burned. The carbon compounds जो भी उस टिश्यूज में है, that will be oxidized to the gaseous form like CO2 and water vapor. Thereby, the CO2 are removed and metabolic water residue और जो remnant होते हैं उसको हम बोलते हैं ash. So this ash contain many important inorganic elements like calcium, magnesium, etc. So सबको पता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में 46.6% ऑक्सीजन बाय वेट है, और सिलिकॉन जो है वो क्या है, 27.7% by weight. Okay, now there is a table also given in NCERT that is very important. Now nitrogen is very little, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम नाइट्रोजन है, बट जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, राइट। हमें 65% बाय वेट ऑक्सीजन दिखता है, हमें सिलिकॉन का अमाउंट बहुत कम, नेग्लिजिबल दिखता है, और जो नाइट्रोजन है दैट इज अराउंड 3.3% बाय वेट। Now, what is the average composition of cell? Very important question यहाँ से आते हैं
कि वाटर का जो है वो 70 to 90%, प्रोटीन इज 10 to 15, carbohydrate is 3, now lipid is around 2, nucleic acid is 5 to 7, and ions are 1. But what is important here, water is the most abundant chemical in living organism. इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये आ चुका है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड later on we'll be talking about secondary metabolite also. So primary metabolite have identifiable function. इनके फंक्शन हमें पता है कि क्या रोल हमारे फिजियोलॉजी में प्ले कर रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें पता है कि ये कर रहा है. ओके, so these are required for the basic or primary metabolic processes. कौन से processes? Like photosynthesis, respiration, protein and lipid metabolism. So कौन से बायोमोलिक्यूल्स इसमें इंक्लूड होते हैं? इसमें हमारे अमीनो एसिड्स आते हैं, शुगर आता है, क्लोरोफिल आता है, हीमोग्लोबिन का हीम इज व्हाट? आयरन. दैट आल्सो कम्स अंडर दिस ओनली. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट? सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है उसका फंक्शन है, बट उसका फंक्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसमें क्या है वो हमें नहीं पता है. ठीक है, सो अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which are not involved in primary metabolism are referred as secondary metabolite. The function or role of the secondary metabolite in host organism are not understood, or no direct function in its growth and development of organism have been understood. Okay, so example जो इसका है वो रबर है, ड्रग्स है, सेंट है, पिगमेंट है. ठीक है, now further हाँ, हमारे प्लांट, फंजाई एंड माइक्रोब्स जो है वो भी कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बट उनके लिए क्या है हमें ये नहीं पता. सो सम साइनोबैक्टीरियल सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो या, सो देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर for informative point of view से कि father of modern biochemistry is कौन है? कार्ल न्यूबर्ग. So ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स ना हमेशा याद रखने चाहिए. दिस इज डेटा चार्ट कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है 93% पार्ट ऑफ द बॉडी में है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन 96% है. फिर हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज 98%. जस्ट एनालाइज दिस डेटा, नो नीड टू क्रैम इट, मग अप नहीं करना है आपको, बट हाँ एनालाइज करो. कैल्शियम जो है बहुत अबांडेंट है मिनरल हमारी ह्यूमन बॉडी में, विच मेक्स अप अराउंड 1.5 to 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. नेक्स्ट पॉइंट इज calcium and magnesium, they help in muscle contraction. ओके, एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व को एंड मसल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारा कार्बोनिक एसिड है, बाइकार्बोनेट, दैट वर्क्स एज बफर सिस्टम. द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आयरन अबंडेंस कैसे है हमारे सेल में. सो हमारे सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, फॉलोड बाय सोडियम एंड देन कैल्शियम. दिस विल ऑल्सो कम इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, now next slide is the abundant element inside the cell. So oxygen is, then carbon, then nitrogen, and then hydrogen. The most abundant chemical in living material is water. The abundant biomolecule in biosphere is cellulose. Then second most abundant biomolecule in biosphere is chitin. Then abundant protein in biosphere is rubisco. This table secondary metabolite and इनके एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड, एंथोसायनिन, अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, टर्पेनॉइड, मोनोटर्पीन, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. एंड दिस data chart is also very important, so do memorize it. Okay, so we'll continue rest of the part in next lecture. We'll be continuing with carbohydrates. Okay, and the questions related to the topics discussed now will be posted, and question related to this will be posted on Instagram. Okay, so you may subscribe it, like it. Okay, thank you.